ایک جن ایک پری کے اوپر حملہ کر رہا تھا، اسے زخمی کر کے۔ ارے مالک، کیا مجھے زندگی دی ہے؟ نہ شادی ہو رہی ہے اور نہ بھری جوانی میں کوئی کھانے کو گوشت مل رہا ہے۔ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتا ہوں۔ اتنے میں اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک جن ایک پری کے اوپر حملہ کر رہا تھا، اسے زخمی کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ لکڑ بگھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ پری کے پاس گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیوں مار رہا تھا؟ میرے پاس ایک ایسا جادو ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ یہ مجھ سے چھیننا چاہتا تھا جو میں نے اس کو نہیں دیا، اس لیے مجھے مار کے چلا گیا ہے۔ مجھے بچا لو، یہ پھر اب میرے اوپر حملہ کرے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنی غار میں لے چلتا ہوں۔ بھیڑیا پری کو لے کے غار میں آ گیا۔ میرے ساتھ ایک طوطا بھی تھا، وہ کدھر گیا ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گیا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب تک مجھے آرام نہیں آتا میں یہاں آرام کروں گی، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ پری، تمہارے پاس ایسا کون سا جادو ہے جو وہ جن تم سے لینا چاہتا تھا؟ میرے پاس ایسا جادو ہے کہ میں جب چاہوں، جس کو چاہوں، جہاں سے چاہوں، یہاں میں حاضر کر سکتی ہوں۔ بھیڑیا بہت حیران ہوا۔ کیا تم کہیں دور دراز کے علاقے میں کوئی جانور چر رہا ہو تو کیا تم اس کو بھی یہاں پہ لا سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ چلو، ابھی نے دیکھا تھا ندی کے کنارے بہت موٹا تازہ ہرن جا رہا تھا، تو اپنے جادو کے ذریعے اس کو یہاں پہ لاؤ۔ پری نے جادو کیا۔ فوراً وہی ہرن لکڑ بگھے کی غار کے اندر آ گیا۔ لکڑ بگھا بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی ہرن کا شکار کیا اور اس کو کھانے لگا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اس کو مارنے کے لیے تو نہیں یہاں بلایا تھا، میں نے تو صرف تمہیں جادو دکھایا تھا۔ بھیڑیے کے دل میں لالچ آ گیا۔ بس آج سے تم اس غار کے اندر قید رہو گی، اور جیسا میں کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ پری ڈر گئی۔ جس جانور کو میں کہوں گا اس جانور پہ تم نے جادو کر کے اس کو یہاں پہ بلانا ہے۔ اگر تم نہیں بلاؤ گی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ پری خونخوار بھیڑے کو دیکھ کے ڈر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور لکڑ بگھا جس جانور کو کہتا، پری جادو کر کے وہ جانور اس کے سامنے پیش کر دیتی اور لکڑ بگھاوا جانور کھا جاتا۔ ایک دن پری نے کہا، بس اب بہت ہو گیا، اب میں مزید نہیں کر سکتی، تم مجھے آزاد کر دو۔ تم کیوں مظلوم جانوروں کا شکار کر رہے ہو؟ میں اور نہیں کر سکتی، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں ہی کھا جاؤں گا۔ پری ایک دفعہ پھر ڈر گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ آہستہ آہستہ یہ بات جنگل کے جانوروں نے محسوس کی کہ کچھ جانور چرتے چرتے اچانک ہی غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے۔ گدھے بھائی، آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ جانور چرتے چرتے ہی غائب ہو جاتے ہیں؟ ہاں بھائی، کل ہرن میرے ساتھ چل رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اچانک غائب ہو گیا اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے بھی دیکھا ہے، اس دن خرگوش میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد ایسا غائب ہوا کہ اس کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ بھیا، شکار پھر کون کر رہا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے شکار، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ تو ہمارے سامنے غائب ہوتے ہیں اور واپس ہی نہیں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جنگل میں کوئی جادوگر آ گیا ہے۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی جادوگر آ گیا ہے اور وہ جادو سے جانوروں کو غائب کرتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ اتنے میں دور سے دوڑتا ہوا بھالو آیا اور اس نے کہا کہ تمام جانوروں کو شیر نے بلایا ہے۔ شیر نے سب جانوروں کی سبھا بلائی ہے۔ مجھے کچھ جانوروں نے شکایتیں کی ہیں کہ ان کے کچھ عزیز اچانک غائب ہو گئے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بادشاہ سلامت، ایسا ہی ہے۔ اس دن میرے سامنے خرگوش باتیں کر رہا تھا اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ بالکل بادشاہ سلامت، کل ہرن میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور اچانک غائب ہو گیا اور پھر کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر گیا ہے۔
बादशाह सलामत। मुझे लगता है कि हमारे जंगल के अंदर कोई जादूगर आ गया है जो जादू करके जानवरों को गायब कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई शिकारी हमला करता तो हमें नजर भी आता। जानवर चीखते चलाते, कोई खून बहता, कोई हड्डियां होती, उनका गोश्त होता, कुछ भी नजर नहीं आता। बस जानवर गायब होते हैं और फिर उनका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बादशाह सलामत, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा जादूगर है और कैसे जादू कर रहा है? हमें तो जादू आता ही नहीं है। यही तो सोचने वाली बात है कि हम जानवरों को तो जादू आता ही नहीं है। ये तो इंसान जादू करते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा? यही तो मैं भी परेशान हूं कि आखिर इस जादू का कैसे पता चलाया जाए। बादशाह सलामत, हमारे खानदान के कुछ भालू काले होते हैं जो अकेले रहते हैं, लेकिन उनकी ये खूबी है कि उनके पास जादू का इल्म होता है और काले भालू सिर्फ अगले कालू भालू में ही अपना वो जादू वाला इल्म ट्रांसफर करते हैं। वो किसी भोरे भालू में नहीं करते। हमारे रिश्तेदारों में भी एक काला भालू है। आपको याद है, वो काली घाटी के अंदर रहता है। वो जादू के बारे में जानता है। आप कहें तो मैं उसके पास जाता हूं और उसको यहां लेके आता हूं। वो हमें बता देगा कि इस जादू का क्या तोड़ है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अब हमें काले भालू को ढूंढना पड़ेगा? ढूंढने की जरूरत नहीं है। जंगल की काली घाटी के अंदर जिधर कोई भी जानवर नहीं रहता, इधर काला भालू रहता है। हमें उस काले भालू के पास जाना चाहिए। उसके पास जादू का इल्म जरूर होगा, क्योंकि मेरे दादा काले थे। उन्होंने वो इल्म सिर्फ उस कालो काले भालू में ट्रांसफर किया था, मुझे नहीं दिया था, चूंकि मेरा रंग भूरा था। ठीक है भालू, तुम भेड़िए को साथ ले जाओ और फौरन उस काले भालू के पास पहुंचो। उसे कहो कि हमारी मदद करे। भेड़िया और भालू काले भालू कालू के पास पहुंचते हैं और उसे सब बताते हैं। अरे कालो भाई, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे जंगल में कोई जादूगर आ गया है और उसके जादू की वजह से जानवर गायब हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैं बूढ़ा होने वाला हूं। मुझसे ना तो इस किस्म का शिकार होता है और ना ही मुझसे कुछ सब्जियां काश्त की जाती हैं। मेरा ये मुतालबा है कि जंगल का ये हिस्सा मेरे लिए मुख्तस कर दिया जाए और यहाँ पे 2 मुहाफिज छोड़े जाएं जो मेरी हिफाजत करेंगे, और इस हिस्से के अंदर खूब फल और सब्जियां उगाई जाएं और इसके अंदर छोटे छोटे जानवर छोड़े जाएं जैसे खरगोश, मुर्गियां वगैरह हैं, ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी यहाँ से आराम सुकून से बसर कर सकूं। देखो, ये सारी चीजें बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन अभी तुम आओ और बताओ। देखो भाई, मैंने अपने मुतालबात रख दिए हैं। अगर मेरी मदद चाहिए तो मेरे मुतालबात पूरे करो, नहीं तो जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। भेड़िया और भालू दोनों वापस आ गए और उन्होंने शेर को सारी कहानी बताई। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने ही जंगल का एक हिस्सा उस कालू को दे दूं? कल को कोई और जानवर उठेगा और कहेगा कि अगर आपने मुझसे ये काम करवाना है तो जंगल का फलाना हिस्सा मेरे नाम कर दें, तो मैं सारा जंगल उनके नाम कर दूंगा। तो मेरी बादशाहत कहाँ पर होगी? बादशाह सलामत, आप ठीक कहते हैं। हमें इसका ये मुतालबा नहीं मानना चाहिए। बादशाह सलामत, जादूगर जादू जानता है और वो जादू के जोर पे किसी भी जानवर को गायब कर देता है। अगर उसने आपको गायब कर दिया तो आप क्या कर लेंगे? हो सकता है अगला नंबर आपका हो। तुम कहना क्या चाहते हो? बादशाह सलामत, अगर जादूगर ने आपको ही गायब कर दिया, फिर तो ना आपकी बादशाहत बचेगी और ना ये जंगल। फिर तो जंगल बड़ा हो या छोटा हो, आपके किसी काम का नहीं। बादशाह सलामत, गधा ठीक कहता है। अगर आपने अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो इस वक्त इसी में बेहतरी है कि आप उस कालू की बात मान ले, उसके मुतालिबात मान ले, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बादशाह सलामत, ये ठीक कहते हैं। आपको कालू के मुतालिबात मान लेने चाहिए। ठीक है, कालू से कहो कि मुझे तुम्हारे मुतालिबात मंजूर हैं।
अब आओ और हमें बताओ हमने क्या करना है। भालू और भेड़िया गए और कालू से कहा कि हमें तुम्हारे मुतालबात मंजूर हैं, अब आओ। कालू दरबार में हाजिर हुआ है और शेर ने सारी बात उसको बताई है। मुझे पता है बादशाह सलामत, मुझे कुछ वक्त दें, अकेला मैं रहूंगा और कुछ अमल करूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इजाजत है, तुम अकेले रहो। कालू थोड़ी देर अकेला रहा, उसने कुछ अमल किया और वो दोबारा दरबार में आ गया। बादशाह सलामत, आपके जानवरों में से किसी जानवर ने कोहे काफ की परी को कैद किया हुआ है और वो उसी परी के जरिए जादू करवा रहा है। वो परी को जिस जानवर का कहता है, वो परी जादू के जरिए वो जानवर उसको हाजिर कर देती है और वो उसको खा लेता है। लेकिन ये भी बात याद रखें कि परी का जादू सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर काम करता है। अगर 24 घंटे में उसे जादू करने का न कहा जाए तो परी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगी और फिर वो उस जानवर के चिंगल से भी आज़ाद हो जाएगी और कभी भी किसी जानवर के ऊपर जादू नहीं करेगी। जिस जानवर ने परी को कैद किया है, वो रोजाना उसे कोई न कोई जानवर जादू करके गार में बुलाने का कहता है, सो परी उसको रोजाना वो जानवर ला देती है जादू करके। परी इसी वजह से जादू कर रही है चूंकि उस जानवर ने परी को हुक्म दिया है कि अगर तुम जानवर को हाजिर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ओह, तो वो जानवर कौन हो सकता है? बादशाह सलामत, मेरा इल्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं उस जानवर का नाम लूं, क्योंकि ये मेरे इल्म की हद है। अगर मैंने इसका नाम ले लिया तो मेरा इल्म मुझसे खत्म हो जाएगा। तो फिर इसका क्या हल है? हमें इस जानवर के बारे में कैसे पता चलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पीरी से 24 घंटे के अंदर अंदर कोई जादू न करवाया जाए तो पीरी ऑटोमेटिकली आजाद हो जाएगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आप ये करें कि आप जंगल के सारे जानवरों को अपने दरबार में बंद कर दें 24 घंटे के लिए। सो जिसने भी परी को कैद किया होगा तो वो परी ऑटोमेटिकली आजाद हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे में उसे कोई भी जादू करने का हुक्म ही नहीं मिलेगा जब सारे जानवर यहाँ पे कैद होंगे। ठीक है, मैं हुक्म देता हूं कि सारे जंगल के जानवर मेरे दरबार में हाजिर हो जाएं और 24 घंटे से पहले कोई भी ये दरबार नहीं छोड़ेगा। बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दीजिए और मेरे साथ 2 मुहाफिज भेज दीजिए ताकि वो सारे मेरे मुतालबात पूरे करेंगे जो मैंने कहे हैं। ठीक है, 2 भेड़िए मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूं जो सब्जियां भी उगाएंगे और तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। शीर ने अपने तमाम जानवरों को अपने दरबार के अंदर बुलाया और बंद कर दिया है। पहले तो शेर ने सबको डराया। बता दो मुझे, किसने परी को बंद किया हुआ है? लेकिन कोई भी जानवर नहीं बोला। सारे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर शेर ने सब जानवरों को हुक्म दिया, अब कोई भी इस दरबार से बाहर नहीं जाएगा। 24 घंटे आप सारे यहां बंद रहेंगे। सारे जानवर वहां बैठे रहे। शाम हुई, रात हुई, अगली सुबह आई, दोपहर हुई और फिर शाम होने लगी, यानी कि 24 घंटे गुजरने लगे। इसी वक्त एक जानवर ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अरे अरे, ये कौन भागे जा रहा है? ये तो लकड़बगा भागे जा रहा है। लेकिन ये भाग के क्यों जा रहा है? ओ भाई, 24 घंटे तो पूरे होने वाले हैं। कहीं उसी ने तो परी को नहीं कैद किया हुआ। चलो सारे उसको मिलके पकड़ते हैं। सब जानवरों ने लकड़बगे का पीछा शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो लकड़बगे को पकड़ पाते, लकड़बगा फौरन अपने गार के अंदर दाखिल हो गया और उसने जाते ही परी को हुक्म दिया, परी, मेरी गार के बाहर ऐसा हिसार कायम कर दो कि अगर कोई भी इस हिसार को तोड़ेगा तो वो उसी जगह ही जल के भस्म हो जाएगा। परी ने ऐसा ही किया। लकड़बगे की गार के बाहर जादू से एक हिसार बना दिया। जब सारे जानवर लकड़बगे की गार के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा गार के बाहर एक हिसार है। मुझे लग रहा है कि उसने प्री से कहलवा के
तो अपनी गार के बाहर ये हिसार बनवा दिया है। अब सारे जानवर पीछे ही रहें। बिल्कुल, इस हिसार से आगे कोई न जाए, क्योंकि शायद ये जादुई हिसार हो और अगर हम इसको पार करें तो हम भी गायब हो जाएं। बादशाह सलामत, ये तो पता चल गया कि ये लकड़ बुगा ही कर रहा है, लेकिन अब इसका क्या किया जाए? बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि हमें दोबारा कालो को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल महाराज, कालू को बुलाएं और कालू ही हमें इसके बारे में कुछ बताएगा। भेड़िए और भालू, जाओ कालू को बुलाओ। उसे कहो कि बादशाह सलामत बुला रहे हैं। एक मसला हो गया है। भालू और भेड़िया कालू को शेर के दरबार में ले आए, जहां सब जमा थे। बादशाह सलामत, ये कोहे काफ की मखलूक है और उसको यहाँ से छुड़ाने के लिए कोहे काफ से ही कोई आएगा तो ही उस परी को छुड़ा के लेके जा सकता है। हमारे बस की ये बात नहीं है। हम कोहे काफ से कैसे किसी को लेके आ सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं है कि कहाँ पर है। ये बात आपकी ठीक है, कोहे काफ के बारे में मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ऐसी परियां कभी भी अकेले सफर पे नहीं निकलती हैं। अगर ये परी है तो इसके साथ एक और परी लाजमी सफर पे होगी। अगर कोई परी नहीं होगी तो उसके साथ कोई जरूर पालतू जानवर होगा, जैसे कुत्ता हो सकता है, तोता हो सकता है, कबूतर हो सकता है, बिल्ली हो सकती है। सो आप उस जंगल के अंदर उस परी के साथ जो दूसरी चीज है वो ढूंढें, आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि परियों का ये रोल है कि परी कभी भी जंगल में अकेले नहीं जाती, उसके साथ कोई ना कोई जरूर होता है। इसका मतलब है हमें कोई दूसरी परी या कोई दूसरा जानवर मिल सकता है। बिल्कुल, आपको या तो कोई दूसरी प्री यहां से मिलेगी या उस प्री का कोई पालतू जानवर मिलेगा। आप उसकी मदद से उसको छुड़ा सकते हैं। अगर हम कोहे काफ जाना चाहें तो क्या उसके बारे में आपको कुछ पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमें किस तरफ कोहे काफ मिल सकता है। कोहे काफ यहां से बहुत दूर है। एग्जैक्ट कहां पर है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बेहतरी उसी में है कि आप प्री के साथ जो दूसरी प्री थी या उसके साथ वो पालतू जानवर जरूर आया होगा। आप अपने जंगल में गश्त करें, आप उस चीज को ढूंढें। ठीक है कालू, हम कुछ करते हैं। इतना कहकर कालू वापस चला गया। बादशाह सलामत, मुझे याद आया कि वो जो कौवा नहीं जंगल के आखिरी कोने में रहता, वो अक्सर कहा करता है कि मेरे पास कोहे काफ से तोता आता है। हाँ बादशाह सलामत, वो कहता होता है कि मेरे पास कोहे काफ से तोता आता है, तो क्यों न हमें इससे मालूमात ली जाए। ठीक है लोमड़ी और गधे, तुम जाओ कव्वे से मिलो, शायद उसे कुछ पता हो। लोमड़ी और गधा कुएं के पास पहुंचते हैं। हाँ, वो तोता मेरे पास आता होता है। अभी कुछ दिन पहले भी मेरे पास आया था। तो हमें उसके पास ले चलो। इस तरह उस लकड़बगे ने एक परी को कैद कर दिया है और हमने उससे परी छुड़वानी है। मुझे बादशाह के पास ले जाओ। ठीक है, चलो शेर के पास चलते हैं। ख्वाह शेर के दरबार में हाजिर होता है। बादशाह सलामत, कोहे काफ जाने का जो रास्ता है, इसमें 10 से 12 दिन लग सकते हैं और पीछे मेरे बीवी बच्चे भूखे होंगे। तो आप मेरे बीवी बच्चों की रखवाली करेंगे और उनको खाना देंगे। ये जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर मैं आपके साथियों को कोहे काफ ले चलता हूँ। ठीक है कुए, कोई मसला नहीं। तुम बेशक अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाओ या इधर ही छोड़ जाओ, मैं इधर भी रखवाली करवा दूंगा। अगर यहाँ छोड़ के जाना चाहते हो तो यहाँ। बादशाह सलामत, मेरे बच्चे इधर रहेंगे। आपने इधर रखवाली करनी है और इधर ही खाना देना है। ठीक है। इतना कहकर को लोमड़ी और गधा कोहे काफ की तरफ चल पड़े। अभी उन्होंने अपना जंगल पार ही किया था कि रास्ते में उन्हें एक जख्मी तोता मिला। कौवा चलाया। अरे, ये तो वही तोता है जो कोहे काफ में रहता है। लेकिन इसको क्या हुआ? इसके तो पर ही नहीं है। उन्होंने तोते को उठाया तो तोता जख्मी हालत में था।
कौवा बोला। अरे तोते भाई, तुम तो मेरे हाथ से बिल्कुल ठीक गए थे, तो तुम्हें क्या हुआ? तोते ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक जिन ने परी के ऊपर हमला किया और फिर मुझे मार दिया। मेरी जादू वाली पट्टी भी परी के पास है। मैं जादू भी सही नहीं कर सकता। अब मैं वापस कोहे काफ जा रहा हूँ, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। वो तीनों उसको लेके बादशाह के दरबार में आ गए। जख्मी तूता दरबार में मौजूद है। जानवर उसके गिर्द जमा हैं। तोते की जब तबीयत संभली तो तोता बोला, आप लोगों का जो नुकसान हो चुका है वो तो चलें हो चुका है, वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अब जितने जानवर जिंदा हैं उनको मैं बचा लूंगा। वो कैसे? महाराज, अब जितने भी जानवर हैं उनको अपने दरबार में जमा करने। मैं आपके दरबार के बाहर एक हिसार कायम कर दूंगा, एक जादुई हिसार। जो हिसार के अंदर रहेगा उस पर जादू असर नहीं करेगा और वो महफूज रहेगा। ये सब बातें तो चले ठीक है, हम जादू से महफूज रह सकेंगे, लेकिन हमें परी को कैसे आजाद करवाना है? चूंकि असल मसला परी का है, जब तक परी उसके पास है वो जादू करवा के अगर यहां से नहीं तो किसी और जंगल से जानवर उठा के खा लेगा। इस बात की भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज चांद की 7 तारीख है और जब चांद की 14 तारीख होगी, यानी कि जब पूरा चांद होगा, तो उस दिन जादू असर नहीं करता। तो आप चांद की 14 तारीख तक सारे यहाँ बंद रहेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा? क्योंकि चांद की 14 को जादू, परी का जादू असर नहीं करता, इस रोज आप लकड़ बगे की गार पे हम लम्हा कर देंगे, क्योंकि उस दिन परी का जादू ना तो जादू कर सकेगी और ना ही उस दिन लकड़ बगे को कोई फायदा होगा। लकड़ बगा आम सा जानवर होगा, सो आप सारे मिलकर उस पर अटैक करके उसे कैद कर लेना। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको सब बेसब्री से इंतजार था। चांद पूरी आबोताब के साथ रात को चमक रहा था। इधर तोते ने कहा कि ठीक है, अब चांद हो चुका है, अब आप सारे खुफिया रास्ते से लकड़बगे की गार के आगे पीछे आ जाएं और फिर हम उसके ऊपर हमला करेंगे। इधर 14 की रात ही लकड़बगा चुपके से अपनी गार से बाहर निकला, ये देखने के लिए कि मैं देखूं कि हिसार किस तरफ है। चूंकि जानवर पहले ही लकड़बगे की गार के बाहर पहुंच चुके थे, जूं ही लकड़बगा गार से बाहर निकला, सारे जानवरों ने लकड़बगे के ऊपर हमला कर दिया और उसे पकड़ लिया। साथ में ही परी को भी वहां से आज़ाद करवा लिया। सब जानवरों ने जश्न मनाया और परी को भी आज़ाद करवा दिया। सबसे पहले तोते ने परी से कहा, मुझे जादू करके मेरे पर वापस कर दो और मेरी पट्टी भी वापस कर दो, ताकि मैं जादू किया कर सकूं। परी ने फौरन जादू करके उसके पर भी वापस कर दिए और उसकी पट्टी भी वापस कर दी। फिर परी ने एक ऐसा जादू किया जिससे भेड़िया और लकड़बगा कैद हो गया। फिर परी ने सब जानवरों को कहा, अब ये हमेशा यहाँ पे कैद ही रहेगा। जिस तरह उसने दूसरे जानवरों के साथ जुल्म किया, अब उसकी बारी है, उसको भी सजा मिले। ये हमेशा यहाँ कैद ही रहेगा और उधर ही भूख प्यास से मर जाएगा, जिस तरह उसने बाकी जानवरों को मारा। मैं इस जंगल के अंदर एक हिसार कायम कर दूंगी। जब तक वो हिसार कायम रहेगा, कोई भी जानवर किसी दूसरे का शिकार नहीं करेगा और इस जंगल के अंदर बहुत ज्यादा सज़ा और फल उगेंगे। तमाम जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने परी का शुक्रिया अदा किया और सारे अपने अपने गस्तरों की तरफ चले गए। तोता और परी अपने घर कोहे काफ की तरफ चले गए और भेड़िए को हमेशा के लिए कैद करके कैद कर दिया गया।